आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। As per the RTI reply of 2023, Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir lead the country in gun licenses. A ban on the issuance of gun licenses in Jammu and Kashmir was imposed in 2018, and this ban was lifted in 2023. In October 2020, a leading newspaper quoted the official data and stated that 22,805 fresh licenses had been issued across the country from 2018 till September 2020. इसमें तकरीबन 18,000 लाइसेंसेस जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर में इशू हुए थे. That accounted for approximately 78.51% of the licenses. This figure was in spite of the ban. How there was a rise in the issuance of the gun licenses in the Union Territory despite of an almost 5-year ban, this could not be explained by the power corridors of Jammu and Kashmir. ये कहना गलत नहीं होगा that the arms license scam in Jammu and Kashmir represents one of India's largest arms licenses scam, which has far-reaching implications on the security and governance. इस स्कैम से रिलेटेड कुछ तथ्य मैं आपके सम्मुख एक एक करके रखूंगा. In 2012, Sheikh Mohammed Shafi, Professor S.K. Bhalla, and Advocate Sheikh Shakir Ahmed, they decided to obtain information with regard to the IS and KS officers of Jammu and Kashmir who have been booked in corruption charges in the last one decade, that is 1st of January 2000 till 31st of December 2011. They wanted to know against whom the cases have been booked, how many cases have been established against these IS officers, and where is the sanction pending as per the Jammu and Kashmir Prevention of Corruption Act. Later, once they got the information, they filed a PIL number 9 of 2012. इस PIL में उन्होंने माननीय अदालत से रिक्वेस्ट करी कि वो स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को कमांड करे कि चार्जशीट फाइल की जाए अक्यूज के खिलाफ in view of the deemed sanction that the law that has been laid down by the Supreme Court in Dr. Subramanian Swamy versus Dr. Manmohan Singh as on 31st of January 2012. वो जानते नहीं थे कि ये मुहिम उनको ले जाएगी आर्म्स लाइसेंस स्कैम तक. 2017 में आर्म्स लाइसेंस स्कैम बस्ट हुआ. 11 मई 2018 को Jammu Kashmir Home Department forwarded a report for investigation into the alleged irregularities regarding the issuance and renewal of the arms licenses by the licensing authorities. FIR register की गई, cases transfer हुए CBI को. 5 सितंबर 2024 को CBI को पार्टी इम्प्लीट किया गया इस केस में. 15 अक्टूबर 2024 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट जिस दिन सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट माननीय अदालत के सामने रखी. ये स्टेटस रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने क्लियर किया कि व्हाट वाज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द आर्म्स लाइसेंस स्कैम. क्या किया गया, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने आईएएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, एक एक चीज सीबीआई ने इसमें स्पेसिफाई करी. सीबीआई ने इसमें कहा कि 2012 से 2016 में ये स्कैम किया गया. 1.53 लाख arms license approximately were issued in the 10 districts of Jammu division. 1.12 lakh approximately licenses were issued in 12 districts of Kashmir division. 95% of these licenses were issued to the armed forces. Investigation complete की गई. It was established that 39 IS and KS officers की criminality इसमें establish की गई. 71 gun house dealers का नाम इसमें आया और इनके अगेंस्ट क्रिमिनलिटी स्टैब्लिश की गई. 13 चार्जशीट्स फाइल हुई. 15 रिपोर्ट सीबीआई की गई. सीबीआई ने इस रिपोर्ट में एक मोडस ऑपरेंडी जो था एक्सप्लेन किया. उसने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स, गन हाउस डीलर्स, मिडलमैन, क्लर्क्स ये सब इस स्कैम में इन्वॉल्व थे. मॉनेटरी कंसिडरेशन को स्पेसिफाई किया गया और कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन इन लाइसेंसेस के इशुएंस में नहीं की गई. एनेक्स्चर A1 जो कि इस रिपोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एनेक्स्चर है, इस एनेक्स्चर में सीबीआई ने स्पेसिफाई किया कि कितने आईएएस ऑफिसर्स, केएस ऑफिसर्स और क्लर्क्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट
prosecution sanction आज भी pending है. The total list that was given is of 12 districts, 15 CBI reports, 13 IS officers, 3 KS officers and 11 clerks. Unfortunately, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने प्रशासन को नहीं कहा कि आप वो अपना कर्तव्य प्रॉपर्ली निभाएं. आर्म्स लाइसेंस स्कैम में जो भी IS KS ऑफिसर्स जिनके भी नाम इसमें आए, उनकी सैंक्शनिंग, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन टाइम पे नहीं की गई. इसी वजह से इस केस में विलंब हो रहा है. प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, अब GAD ने इसमें क्या गड़बड़ी करी वो एक एक करके मैं आपके समक्ष रखूंगी. The prosecution sanctions against the IS officers is still pending. Until now, they are sitting in the plum positions. As per the report, Dr. Shahid Iqbal Chaudhary इस केस में इन्वॉल्व है, Dr. नीरज कुमार, मैडम यशा मुद्गल, श्री पांडुराम पोले, श्री जितेंद्र कुमार सिंह, श्री प्रसन्ना स्वामी, श्री रमेश कुमार, श्री राजीव रंजन, श्री M राजू, ये सभी प्रतिष्ठित IS अफसरान के नाम इस लिस्ट में थे जिनके अगेंस्ट आज तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पेंडिंग है. सिर्फ एक IS ऑफिसर मिस्टर राजीव रंजन के खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अलाउ की गई है. बाकी सभी IS ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इज स्टिल पेंडिंग. सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो क्लियरली ये कहती है दैट जो भी टेंटेड ऑफिसर्स हैं उनको प्लम पोजीशंस नहीं दी जाएंगी. इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न that despite of the Supreme Court judgment, Mr. M. Raju was made the Commissioner Secretary of the GAD. ये explain करें माननीय LG साहब हम. GAD ने delay tactics अपनाए. They have been sleeping over the issue. कितने orders की अवहेलना की गई है. हाई कोर्ट ने properly अपने order 28 दिसंबर 2020 के order में कहा है that the complete report of the GAD is sketchy and confusing. जितने भी accused इस scam में हैं, they have resorted to representations जो कि allowed नहीं होना चाहिए था. There is a pick and choose policy. केस ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अलाउ की गई है मगर IS ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं. There is an unnecessary correspondence which is being made by the GAD with the law department, with the CBI just to delay the complete procedure. क्या स्टेट इनकॉम्पिटेंट है करप्शन को डील करने के लिए? सबसे हैरानकीजनक वाली बात यह है कि GAD ने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो दायर करी 5 दिसंबर 2023 को और इसी रिपोर्ट को उन्होंने कुछ दिन बाद विड्रॉ कर लिया. इट इज वेरी क्लियर इन दैट रिपोर्ट दैट मेनी IS ऑफिसर्स हु आर टेंटेड, उनके खिलाफ जो GAD है इट इज ट्राइंग टू शील्ड देम. GAD ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में MHA की भी एक स्टेटमेंट इंक्लूड करी जिसमें MHA ने कहा कि जल्द से जल्द आप हमें अपना फाइनल डिसीजन विद रिगार्ड टू द प्रोसिक्यूशन सैंक्शन उसको हमें भेजें. देयर आर एन नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ द DOPT जो अटैच की गई. इन सभी कम्युनिकेशंस में जो है ये कहा गया है DOPT के कि आज तक complete proposal with the supporting documents through single window system for the prosecution of these IS officers has still not been done. देखिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई जिसने 3 सैंक्शन के बारे में बात करी, उस जजमेंट की धज्जियां उड़ा रखी हैं GAD ने. अंत में मैं माननीय LG साहब को यही कहना चाहूंगी कि सितंबर 2023 में आपका रेडियो प्रोग्राम सुना था मैंने, आवाम की आवाज, जिसमें आपने कहा था that Jammu and Kashmir administration has strict policy of zero tolerance against corruption. अब आप हम पे असीम कृपा कर दें, kindly expedite the prosecution sanction against the IS officers and the KS officers in public interest and for the security of Jammu and Kashmir. Kindly cancel the licenses of the gun house dealers who are involved in the scam. करोड़ों रुपए का जो भुगतान है स्टेट एक्सचेकर को करना पड़ा. The crime rate in Jammu and Kashmir is at its all-time high. The taxpayers of Jammu and Kashmir demand कि आप renewal and fresh issuance of arms license करें. करोड़ों के घपले में जो लोग इन्वॉल्व थे माननीय LG साहब, हमारी आपसे एक गुहार है that we want to see them behind bars. न्यायपालिका अपना कार्य करने में सक्षम है मगर अब देखना ये होगा कि आपका प्रशासन कितनी निपुणता दिखाता है. जय हिंद.